हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अंसरकारी। आज हम बात करेंगे उन डेवलपमेंट्स की जिनके पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं that how geopolitical tensions, how economy, how social developments, and even role by different institutions, they play a very crucial role in understanding the construct of the examination. SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, is not asking for the first time. But in 2022 also, the regulator has sought the power to access social media records, क्योंकि वो चाहती है financial advice from social media platforms like WhatsApp, Telegram, and so on so forth, उनसे हटा दिया जाए. But my question to you is, what will be your plan of action or prescription as a future officer so that this regulation can be implemented? And what are the challenges for that? इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, so the question arises, क्या मेटा, व्हाट्सएप जो कि उसकी पेरेंट बॉडी है, मेटा इज अ पेरेंट बॉडी बिकॉज इट इज व्हाट्सएप इज मेटा's प्लेटफॉर्म, will they be allowing such access? What is the status with respect to our current information technology law? Because कैपिटल मार्केट वॉचडॉग को एक ऑथराइज एजेंसी के तौर पर देखा नहीं जाता. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. There are other areas also of interest where such kind of changes and developments can be seen. When we speak about Panchayati Raj institutions and urban bodies, it is very important to give them financial power. Because without devolution of power, especially the financial powers to Panchayat, we can't say there will be a real development. जैसा हमने पहले भी चर्चा की, क्या गांव को शहर बना दिया जाए? मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी ने कहा गांव से शहर की तरफ पलायन होना चाहिए, शहर बड़े बनने चाहिए. ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना था पूरा होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज होना चाहिए. सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट state of Karnataka, then Kerala, then Tamil Nadu, Maharashtra, and then Uttar Pradesh. On the scale of 100, they are the one who are actually helping in providing the benefits at the down level. लेकिन क्वेश्चन अराइजेज, हरियाणा, पंजाब और झारखंड वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन and even IITs, when they have done the such study along with नीति आयोग, it has found that with time devolution increase तो हुआ है, और उससे आप कह सकते हैं कि जो उसकी वर्किंग और जो उसकी एबिलिटी है वो भी इंप्रूव हुई है. स्टेक होल्डर्स एबिलिटी टू मेक पॉलिसीज भी चेंज हुआ है. बट क्या रियली में जो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने की क्षमता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की क्षमता है, जो स्टाफ और बाकी डिजिटाइजेशन, एंड देन on the top of it when we speak about Swachh Bharat Abhiyan, or even at a top layer, smart city, smart villages, they all are linked with not only uh, panchayats but also, if I say, a comparable pillar is of urban bodies. So accounting and audit जो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर अच्छा होगा तो आप कह सकते हैं सरकार भी अच्छी होगी, सरकार अच्छी होगी तो देश अपने आप विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट आर्टिकल 243G of the constitution, because it stipulates states to assign local functions to panchayats, enabling them to act as institutions of self government. Therefore, UPSC has also asked in essays, क्या status है पंचायती राज development? Even in general studies paper 2 and in public administration and also in political sciences, you have questions with respect to different aspects of it.
बात सिर्फ हाईवेज की नहीं है, बात सिर्फ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की नहीं है, बात सिर्फ किसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर की नहीं है, बात विलेज की है, विच इज एक्टिंग एज अ सोल फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स. अगेन कमिंग बैक टू कैपिटल मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, अगर उसमें हम बात करें सेबी विच इज एक्टिवली कमिंग इनटू पिक्चर, वी ऑलरेडी सीन वन एस्पेक्ट ऑफ दैट, और ये सेकंड एस्पेक्ट है जिसमें बात है कि सेबी क्या चाहती है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर्स वेलफेयर. कैसे रिस्क को कम किया जाए, कैसे इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ाया जाए. सो द लेटेस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एल्गोरिदमिक और एल्गो ट्रेडिंग, उससे कम्युनिटी और एनालिस्ट में एक मिक्स्ड रिएक्शन आया है. बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स, they will be taking the formal route and they will be encouraged algo trading के लिए rather than going for unregistered products जो ये आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपने आप में प्रमोट करते हैं. हाई रिस्क, लैक ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर प्रॉफिट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है वो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू था. लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि जो ये यूनिक आइडेंटिफायर्स अगर हम दे देते हैं, एल्गो ट्रेडिंग और एल्गो ऑर्डर्स को हम प्रमोट करते हैं, स्ट्रिक्ट एपीआई एक्सेस कंट्रोल को भी करते हैं, और जैसे कि आपके बैंकिंग एप्स में होता है, यदि हम वैसा भी करें और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी बनाए, तो क्या वो जनता तक पहुंच पाएगा. फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर देयर बिकॉज देयर मस्ट बी सम गैप. और जो कंप्लायंस बर्डन है उसकी उसका जिम्मेदारी कौन लेगा. सो देयर इज अ वे टू गो, बिकॉज प्रॉपरली रेगुलेटेड एक अगर सिनेरियो है, सो हाई रिस्क टेकर्स को उससे बेनिफिट हो सकता है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कमा भी सकते हैं लेकिन गवा भी सकते हैं. दैट वी फाइंड एवरी टाइम. सो ऑन द गवर्नेंस पॉइंट इट इज अ गुड गवर्नेंस स्टेप. On the other point, it look forward to the challenge which every smart developing country like India will be facing. We must learn from the models which are there in the rest of the world, in the developed countries. For decades, we have been talking about globalization. Now we are facing the issue of fragmentation in the world. Globalization is a reality, and even in the era of nativism, even in the era of collective approach where every nation is looking forward to keeping its interest first. America maga कहता है, China already is going in a different way for ages. In that context, how India stands. India has never favored any fragmentation. India had even supporting the neighborhood first policy. So definitely we are facing fragmentation. The countries in Europe and America, they have reached their peak and pinnacle. Same is the case with countries like Australia. But have they ever contributed in a materialistic way to the global challenges? They are running away. And on the top of it, they are trying to retain, they are trying to protect, they are trying to constrain their position. So, definitely, in that context, it is a post globalization scenario. Coming back to the point that Income Tax Bill 2025, वो क्या ई गवर्नेंस को प्रमोट करता है, वो क्या टैक्स पेयर बेनिफिट्स को आगे रखता है, क्या वो बिल में जो एडिशंस और डिलीशंस किए गए हैं उससे आने वाली जनरेशंस, उससे आने वाले बिजनेस सिनेरियोज, उससे आने वाला जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको बेनिफिट होता है. स्टेक होल्डर्स की क्लैरिटी और रीडेबिलिटी क्या बढ़ी है, ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान रखकर ही उसको बनाया गया है. बिकॉज द इनकम टैक्स बिल 2025 इट विल बी रिप्लेसिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961. असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है और प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपके टैक्स ईयर से चेंज हो जाएगा. अप्रैल 1 2016 जो आप कह सकते हैं कि एक डेट मानी गई. न्यू लॉ प्रपोज टू कम इनटू इफेक्ट आफ्टर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास द बिल. So rather than saying that these are cosmetic changes, these changes reflect a new kind of
डेवलपमेंट। एंड हियर आई मस्ट रीड अगेन, ये 2016 जो लिखा गया है ये गलत है, इसको 2026 होना चाहिए। सो द पॉइंट इज दैट इवन when we try to make real changes, certain things may be by mistake. So April 1 2026 जो होगा, तब से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की बात होगी, और 2026 2027 में अब आप कह सकते हैं कि एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं चेंजिंग इकोनॉमिक एंड कंप्लायंस लैंडस्केप, और जो न्यू टैक्स रिजीम जिसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे पूरे सिनेरियो और पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपने में इंटीग्रेट कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहां देख सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस was seen to be a boon. Microfinance was seen to be a very much a leveler। जब आप बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, जब आप बात करते हैं छोटे छोटे उन क्लस्टर्स की जिनको सांस लेने के लिए, जिनको समझने के लिए अपना एक सिस्टम चाहिए था। पर क्या माइक्रो फाइनेंस इंडिया में एक स्टुमुलेटेड सक्सेस है? बांग्लादेश के प्रेजेंट केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड माइक्रो फाइनेंस के जनक माने गए बहुत सारे तरीके से, लेकिन क्या जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसने वाकई फीमेल ग्रुप्स, वनरेबल सेक्शंस एंड आल्सो वनरेबल सेक्शंस के अलावा हम कह सकते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, क्या उनको मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की? ऐसा कह सकते हैं, बट देयर आर कल्चरल बैरियर्स, दैट इज व्हाट यूपीएससी आस्क्ड, क्योंकि एक क्रिटिकल ब्रिज है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। बॉटम ऑफ द पिरामिड में पहुंचने के लिए माइक्रो फाइनेंस को अगर माना जाए कि उसने एक एक रुपया इकट्ठा करके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रास्ता दिखाकर उन्होंने क्या हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज एंड इवन हॉर्टिकल्चरल, हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री क्यों कहेंगे जब वो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में मेन स्ट्रीम एक तरीके से प्रोडक्ट बनकर आते हैं, देन वी कैन सी इट एज इंडस्ट्री। So this is very important but what had been the problem? The problem had been the recovery, the problem had been the high handedness, the problem had been the profiteering, जिससे आप कह सकते हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं जिनको जितना डेवलपमेंट मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिला। So the good point is that the challenging phases can be overcome if the government and also if the private sector they are showing the way with skills. सो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया एक क्रिटिकल ब्रिज है, ट्रस्ट बेस्ड लैंडिंग मॉडल है। हम कह सकते हैं इससे जो अभी डिजिटाइजेशन है, चाहे वो जनधन हो, चाहे फिर वो आधार हो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो ई कॉमर्स सेलिंग हो, ये सारे एलिमेंट्स मिलाकर आप कह सकते हैं कि एनबीएफसीज, एमएफआईज और बैंक्स को, और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को आगे ले जाते हुए, लखपति दीदी जैसे कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, और जीआई इंडिकेटर्स तक की चीजों को सोचते हुए बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत नायाब अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में जो एक इंथुजियाज्म और जो एक तरीके का कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस इज ए डेफिनेटली ग्रेट थिंग। और उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी अगर चाहें तो अपने लॉन्ग एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वो उसके कुछ ऑफ शूट्स जो हैं वो आप माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट हाउ इंडियन मार्केट्स आर मेच्योरिंग। जब हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं या फ्रीली फ्लोटिंग रुपी की बात करते हैं, तो पहली बात जानने वाली ये है, विल इट बी रियली ए पॉसिबिलिटी एवर? Full capital account convertibility is not there in real terms anywhere in the world. Definitely, there are city states like Singapore or even the US which claim so because of the certain conditions and the free floating rupees also. So this is only one school of thought कि जो truly monetary policy independence है वो जब ही मानी जाएगी जब full capital account convertibility हो।
फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सिंपल, अगर मैं एक उसका आपको एस्पेक्ट बताऊं, आपने भारत में पैसा लगाया, जब मन किया तब आप लेकर चले गए, कोई ना रोकने वाला, कोई ना टोकने वाला। सो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। देर आर सो मेनी सिनेरियोज, देर आर सो मेनी एलिमेंट्स विच आर लिंक्ड विद इट। दैट इज वाई जो मेजर्स हैं, our institutions including the Reserve Bank of India, they take up from the perspective कि कैसे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग और श्योर रखा जा सके। आरबीआई कभी डॉलर सेल करेगा ताकि रुपी डिप्रिशिएट ना हो, आरबीआई कभी उसके अपोजिट स्टेप भी लेंगे, सो दैट थिंग्स कैन बी मैनेज टू सप्लाई डिमांड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस एंड आल्सो द अपॉर्चुनिटीज, उन सबको मिलाकर आप कह सकते हैं। बट द बॉटम लाइन इज दैट India had always taken a positive stand with respect to the contemporary situations. Liquidity easing measures लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इंडिया इज हैविंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटलुक, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बात हो रही हो, चाहे फिर वो सर्विसेज हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर हो, एवरीवेयर इंडिया इज नाउ पुटिंग इटसेल्फ इन सच ए वे जहां वो किसी को कॉपी ना करे, बल्कि अपनी ग्रोथ को खुद देख सके, अ ग्रोथ विच विल बी लीडिंग टू अ वेरी वेरी सस्टेनेबल एंड स्मार्ट टाइप। सो दैट इज वाई full capital account convertibility, you should look into what committees had been set up. Tarapur committee was also there, and what kind of inputs were given by those committees. We have already discussed that how president's rule is being uh, put up, but most importantly, any assembly is under animated suspension. सेंटर को रिपोर्ट भेजी गई एंड उसके बाद पार्लियामेंट जब एडजर्न हुई, उसके कुछ समय बाद ही ये बात आ जाती है। सो द क्वेश्चन इज दैट इन द प्रेजेंट रिजीम और इन द प्रेजेंट सरकार के समय में बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि प्रेसिडेंट रूल को दिया गया। लेकिन जब से भल्ला सर वहां पर अपॉइंट हुए, उसके बाद से एक प्लान बनाया गया, एक सिचुएशन को दोबारा से रीअसेस किया गया, एंड देन दे हैड टेकन अप दिस स्टेप। So this is a very important step to make sure that people's right, people's life, people's security must be priority. Constitutional norms, constitutional values must be uphold in such a way कि चीजों को आगे पुट अप किया जा सके। नाउ हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के बाद अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जिससे हमें ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी देखी जाए। वी मस्ट गो थ्रू what kind of language is used in this article. You just read it and try to understand the process. साथ में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, जो पावर में और लीडर ऑफ अपोजिशन भी, वो सब इस बात को अब अगर पॉजिटिवली पुट अप करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आने के चांसेस ज्यादा हो, बिकॉज देर आर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पावर शेयरिंग जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड एट द सेम टाइम द अनगार्डेड 398 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार एंड द फ्री मूवमेंट रिजीम, वो भी एक रैपिडली शिफ्टिंग डेमोग्राफिक बैलेंस को शो करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आर्टिकल 356 के तहत आप ये बोलते हैं कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो आप हमें ध्यान ये देना है कि कैसे सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि जो पावर जो लेजिस्लेचर की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी, वो अब जो है पार्लियामेंट की अथॉरिटी में चली जाएगी। यानी कि सारी पावर जो है वो गवर्नर जो स्टेट के हैं वो उसको लेके चलेंगे। ही मस्ट बी, यहाँ पर भल्ला सर की बात है, वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड ऑल्सो वेरी हाईली डिस्टिंग्विश्ड जो उनकी सर्विसेज हैं, उससे हम कह सकते हैं कि चेंजेस आएंगे। वक्फ बिल की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो वो एक चेंज है, वो एक नया रास्ता है जिस पर पब्लिक में डिबेट भी हुआ है, जिस पे
सबने चर्चा भी की है। और जो गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, दे बोथ आर हैविंग देयर ओन स्टैंड्स ओवर इट, बट we have to see that what is the crux. The crux is to make sure that the properties are maintained, the properties are used, the properties are for the public, or you can say, अगर हम वक्फ बिल की बात करते तो इस्लामिक जो हमारी हेरिटेज है, इस्लामिक जो हमारी परंपराएं हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको एक दायरे में पॉजिटिव की पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हुए, ना कि बैकवर्ड रिग्रेसिव आइडियाज को प्रमोट करते हुए और जो मिसमैनेजमेंट है उसको रोकने की बात है। दैट इज व्हाट वी कैन से हियर। Waqf Amendment Bill deals with the issues too important to be rushed to the Parliament. They must be discussed thoroughly, as I just said. अगर इश्यूज अनरिजॉल्व भी रह जाते हैं, तब भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट और गवर्नेंस है उसको बड़े अच्छे से डिस्कस करके हमें आगे लेके जाना चाहिए। जो डिसीजन है जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का, वो आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को फिर अपने हिसाब से उस पर कदम उठाना चाहिए। वक्फ बिल, जैसा मैंने कहा, क्या वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का इशू है? बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, इट दे आर यूज फॉर पायस, बहुत ही पवित्र कामों के लिए उसको यूज किया जाता है। उसमें इंक्रोचमेंट इश्यूज भी हैं, और आप कह सकते हैं कि ओनरशिप भी क्लियर नहीं है। ये चीजें आप कह सकते हैं जो जो रियल एक किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म की जो एक बात होती है, उससे वो डेविएट हो जाता है। सो दैट इज वाई इट इज अ वे फॉरवर्ड। उसमें बैलेंस और रिफॉर्म की जरूरत है। माइनॉरिटी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको उसी तरीके से पब्लिक में इस्तेमाल आना चाहिए जो उनका पर्पस है। Now, the air pollution, which we speak about as a very, very grave issue, not only just in NCR, but in the rest of the many cities in India also. So, governance is one aspect of that. अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट में भी है पावर में और सेंटर में भी, क्या वो वाकई एयर पोल्यूशन को प्रायोरिटी मानकर सॉल्व करेंगे? ऐसा इंडिया के केस में अभी बहुत ही ज्यादा enthusiastic and positive approach नहीं है। बट देन दिल्ली बीइंग द ऑप्टिक, दिल्ली बीइंग इन द सेंटर, हमें देखना होगा विद द with the support of not only NGT, but also with support of the state governments around and the center, and also this and Delhi government itself, what kind of results come up, and that will show the real dedication and the will. That is what is called political will. और उसके साथ अगर स्ट्रैटेजिक तौर पे देखा जाए, तब हम कहेंगे कि देयर विल बी सम डेवलपमेंट्स विच वर नीडेड। उससे पहले हम ऐसा कह नहीं पाएंगे। हाइब्रिड कोर्ट स्टिल अ कोर्ट का कहने का मतलब है कि हमें किसी भी कॉस्ट के ऊपर, हमें प्रिंसिपल्स को, हमें ऑब्लिगेशन को, हमें विचारों को तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम डिजिटल मोड से भी अगर कोई चीज पुट अप करते हैं, तो उसमें सैंक्टिटी का, उसमें प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का, और उसमें उतने ही रिस्पेक्ट और ऑब्लिगेशन शो करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल गिवन बाय द कोर्ट, जो कि आजकल एक फास्ट तेज चलती हुई जिंदगी में मोरल वैल्यूज का, आइडियाज का और पर्पस का बहुत ज्यादा तिरस्कार देखा गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच या कोई और भी अगर ऑफिशियल बॉडी है, उसका अपनी जगह बहुत डेडिकेटेड वर्क है। हाई कोर्ट यदि उन रिमार्क्स को हटा देते हैं जो क्रिटिसिज्म अनवारंटेड है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये सारे के सारे जो आपके महकमे हैं, सब पे लागू होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द एथिक्स केस स्टडी, हमको ऐसे ही बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा, क्योंकि जो स्कैथिंग रिमार्क्स हैं, जिनके नेगेटिव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई हाई कोर्ट ने इस बात को देखा और अपना एक डिसीजन लिया। Again, coming back to the judiciary, like if Rajya Sabha says that it is having a jurisdiction of its own, and uh, whether opposition move to impeach High Court Justice Yadav is in the line of progressive nation's development or not. तो जगदीप धनखड़ सर, ऑनरेबल
राज्यसभा चेयरमैन, उनका मानना है कि इवेंचुअलिटी में जो इसका डिसीजन जो है कि वेदर देयर इज अ ब्रीच, देयर मस्ट बी इम्पीचमेंट और नॉट, इसका डिसीजन लाइज विद द राज्यसभा और इवेंचुअली द पार्लियामेंट, दैट इज विद द प्रेसिडेंट. The question arises that how to interpret and how what is the actually uh, the whole purpose behind such exercises, so as to maintain decorum, so as to uphold the principles, so as to bring the fundamental justice. So the jurisdiction इस मैटर का कॉन्स्टिट्यूशनली राज्यसभा के पास है, और अगर इस पर बाहर भी पब्लिक डिबेट होता है और यदि राज्यसभा भी कोई डिसीजन नहीं ले पाती, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हमें कहाँ ले जाकर छोड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ. क्योंकि कीपिंग so many other examples in the past, it has never been successful because of so many reasons. So please think and share your view. असम राइफल्स ने 7,000 म्यांमार रेजिडेंट्स के बायोमेट्रिक लिए. अगेन, when Manipur is having president's rule, फ्री मूवमेंट रिजीम, कल्चरल है, इमोशनल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, लेकिन डेंजरस भी है कई एस्पेक्ट से. दैट इज व्हाई वन मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन which India wants to adopt. India is for stricter free movement regime. No, it is not for stopping it. So biometrics लेने से you will be knowing their whereabouts. There will be more closer collaboration, though कुछ backlash हो सकता है. सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वो बोल सकता है कि ये गलत हो रहा है, हम पर डाउट किया जा रहा है, हमारे ऊपर हम पर शक किया जा रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में, डोंट यू थिंक इट इज एक्चुअली, इफ बीइंग डन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, देन it will be actually helping in law and order and also social peace and stability, because जो बायोमेट्रिक्स है इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स, उनसे जो बॉर्डर पास मिलेगा वो वैलिडिटी भी उसकी रहेगी, उससे चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में, चीजों को प्रमोट और डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इन ए फैक्चुअल वे सिंगल एंट्री पास इशू किया जाता है 7 डेज के लिए, 10 किलोमीटर बॉर्डर के लिए. यूजर्स हैव टू डिपॉजिट दिस पास एट द सेम क्रॉसिंग पॉइंट जहां से उन्होंने एंटर किया. They are not interested in going to other areas because they are mainly coming to meet their relatives. That is what officer is also saying. So that's a positive thing. That's an amazing thing. India shares 1,643 kilometer border with Myanmar, जो कि 520 kilometer it passes through Arunachal Pradesh and 250 kilometer through Nagaland. Manipur is 398, Mizoram 510. Demarcation of 1,472 kilometer of the border has been completed. So दो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम्स के, जिसमें असम राइफल्स देश की सेवा में तत्पर है. नाउ अगेन कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल चैलेंज, जिसको यूएस तो स्वीकार करने से भी मना करता है. दे बिलीव दैट देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, बट दिस जनवरी वाज द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड. And National Disaster Management Authority, which manages public policy on disasters. From the मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव हमारे लिए जानना जरूरी है कि उसका क्लासिफिकेशंस, हीट वेव्स का क्लासिफिकेशंस किया गया है, वो एक सीरियस हजार्ड है. एंड दैट इज व्हाई जो हीट वेव्स हैं वो आप कह सकते हैं कि दे आर अ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल एक तरीके का एजेंडा है, जो कि हमारी नॉट सिर्फ पावर इंडस्ट्री को, हमारे in the peak summer seasons, it is actually gripping the whole system in its. हमें कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, हमें एयर कंडीशनर्स चाहिए, इसीलिए हीट वेव्स के टाइम पर डिमांड बढ़ जाती है. 70% ऑफ पावर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि वाटर के ऊपर रिलाई करते हैं कूलिंग के लिए. इसीलिए हाई टेम्परेचर्स उनकी एफिशिएंसी को ना सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि ओवर हीटिंग हो सकती है. वी हैड सीन इन लास्ट समर्स हाउ इन दिल्ली देयर वर ब्लास्ट इवन इन एयर कंडीशनर्स. If I see in the longer way, then food security, water management, and even crop failures are the results. 90% of Indians are vulnerable to heat related health issues.
So it is a multi-dimensional approach which is required. 34 million jobs losses are also there by 2030 as per one estimate. एनडीए में जिसके चेयरमैन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने रोल प्ले किया। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पंचायत, तहसील लेवल पर भी एक एक सिस्टम क्रिएट किया जिसको हम हीट एक्शन प्लान कहते हैं। पर क्या वो हीट एक्शन प्लान रियली ग्रास रूट लेवल पर विजिबल है? क्या जो हमने पंचायती राज फंड्स के डिवोल्यूशन की चर्चा की, क्या उसमें भी कुछ एलिमेंट इनका होगा? सो ऑन सरफेस इट इज देयर, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, लेकिन क्या होगा गिग इकोनॉमी वर्कर्स का? क्या होगा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं? क्या होगा जो निकलना है जिनको अपने घर से, एंड देयर इज नॉट इवन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सो अ लॉट मोर टू बी डन। इसीलिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर हीट वेव मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इन्हीं एफर्ट्स को आगे बढ़ा। मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है जिसकी हमने बात, इसीलिए फाइनेंशियल कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। बट हाउ लॉन्ग? गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे आप कह सकते हैं अर्बन, हाउसिंग एंड इवन मीटेरोलॉजी, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, सोशल डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दैट। दैट इज व्हाई हीट एक्शन प्लान अपने आप में बाकी प्रायोरिटीज से ऊपर ले लेता है। एनडीएमए का कोऑर्डिनेशन चाहिए, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, इसरो के सैटेलाइट्स आप सोचेंगे और नए नए एलिमेंट्स आप पाएंगे। सो प्लीज थिंक एंड क्रिएट अ माइंड मैप ऑफ योर ओन जहां पर आप इसको कर सके और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन तमिलनाडु गवर्नमेंट गवर्नर रॉ ओवर असेंट टू बिल्स, अपेक्स कोर्ट में 12 क्वेश्चन बनाए। ये क्वेश्चन है कि जो हमें दर्शाते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर, एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस गवर्नर इज एक्चुअली फॉलोइंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और नॉट। ये क्वेश्चंस जो हैं हमें मदद करते हैं समझने में कि गवर्नर अगर अपना एसेट विदहोल्ड करते हैं, एसेट विदहोल्ड करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर वो असेंबली के पास वापस जाता है बिल और उसके बाद दोबारा गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या गवर्नर उसको फिर से अपने पास रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? और जब उन्होंने रिजर्व ही नहीं किया और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन को रिजर्व ही नहीं किया, तो क्या वो उसे अपने पास रख सकते हैं? सो दीज आर द वेरी कॉमन सेंस एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं। क्या पावर है गवर्नर की अंडर आर्टिकल 200 जिसकी बात हम कर रहे हैं? अगर मैं वर्बेटिम बोलूं तो power of the governor under Article 200 of the Constitution in giving assent to bills, withholding assent, and reserving for consideration of the president. So, question read karta again, I am repeating. Where the legislative assembly of the state has passed a bill and presented it before the governor for his assent, and the governor withholds his assent there too, and as a result thereof, the legislative assembly passes the bill again with or without the amendment and present it before the governor again, whether it would be open for the governor to reserve the bill for reconsideration of the president, more particularly when he had not reserved it for the consideration of the president when it was presented before him in the first instance. दूसरा, whether the power of the governor under Article 200 is to be exercised only on the aid or advice of the Council of Ministers of the state government, or does the governor enjoy a certain degree of individual discretion in making such a reference? Court would also look into the idea of pocket veto and whether it was envisaged by the constitutional scheme flowing in Article 111, 200 and 201. एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट चेक बेंच चेक करेंगे वो है टू एग्जामिन द अफेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन shall declare used in the substantive part of Article 200 and whether in a time period could be read into Article 200 within which the governor
was required to make such a declaration. So different scenarios जिनमें Article 200 of the Constitution is to be construed, such as if the governor returned the bill altogether with a message requesting the legislature to reconsider certain aspect of the bill in terms of the first proviso to Article 200, and in case where upon consideration of the bill the governor वापस चला गया, फिर दोबारा आया, फिर प्रेसिडेंट के नाम पे आपने उसको रिकंसिडर कर दिया, तो सिनेरियोज हैं. The governor is bound to give the assent to the bill in both the situation or in the only first case. ये हमें देखना होगा. इसीलिए ये बहुत ही important development है. Every year there are questions in the main examination which is asking about the position, the ideas, and the circumstances under which governor is operating and for whom. इसरो मिशन की जब हम बात करते हैं, इसरो के डिफरेंट मिशन हैं, दे आर लिंक्ड विद आवर डेली लाइव्स. चाहे फिर वो स्पेस कैमराज हों, चाहे फिर वो एंटी कोरोसिव पेंट्स हों, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेयर फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आल्सो यू मस्ट सी दैट कैमरा हो, सॉफ्टवेयर हो, और इवन जो एल्गोरिदम हम चंद्रयान 3 के लिए हमने लैंडिंग के लिए यूज किए थे, वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यूज कर सकती है टू प्रिवेंट कोलिशंस. सेंसर्स हैं, ताकि आप प्रोपेलेंट जो सेंसर्स यूज किए गए थे प्रोपेलेंट के लॉन्च के दौरान, दे कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि एयर बैग्स कब ओपन होंगे. तो दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल. दिस इज टू शोकेस अगर इंडिया मिलियंस ऑफ रुपीज यूज करती है इसरो के मिशन में, तो उनका डेली लाइफ से, उनका आम जिंदगी से बहुत ज्यादा लेना देना. फॉर एग्जाम्पल इसरोज बेंजोक्साजीन पॉलीमर, वो इन कैप्सुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के लिए. और वो एक आप कह सकते हैं ऐसा पॉलीमर है जो इजीली प्रोसेसेबल भी है और स्टेबल भी है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और एक गुड फ्लेम रिटार्डेंट भी है. सो दिस शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड इट केयरफुली कि कैसे लिथियम आयन बैटरीज या बाकी डेवलपमेंट्स भी जुड़े हुए हैं डेली लाइफ से. This helps us to write in essay and even in the ethics paper that how vision is there with the ISRO, and thereby bringing all the civilian technologies and developments to the people's mind. This is another example of how judiciary is ready to serve the nation and the society, where High Court is giving not to women to end 25 weeks pregnancy because of utmost, uh, you know, uh, because of utmost urgency or reasons, despite मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये बोलते हैं कि आप सिर्फ 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. तो दिस शोकेसेस अ वेरी एम्पैथी, दिस शोकेसेस अ काइंड ऑफ अ वेरी डीप bend towards people's life, mind and also their future. Because अगर आप किसी भी जीवन के बारे में सोचते हैं, उनको देखते हुए कि क्या सिचुएशन है, ये कोर्ट्स और जुडिशरी ना चाहते हुए भी इन 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 केसेस के अंदर वो एक डिसीजन, वो एक स्टेप लेते हैं. हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रूल्स एंड कोई भी नॉर्म्स वो किसी भी व्यक्ति के जीवन से और उसके उसकी लाइफ और उसकी बाकी कंडीशन से बड़े नहीं है. High energy neutrino. So we must know what are neutrinos. Neutrinos are produced by stars, supernovas, cosmic rays, radioactive decay. उनका जीरो मास जो है वो उन्हें घोस्ट पार्टिकल का नाम भी अन कराता है. They do not, or they, I would say, they seldom, very rarely react with matter, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज जो है वो हमारी बॉडी से हर सेकंड पास होते हैं. इसलिए उनको स्पॉट भी किया जाना बहुत मुश्किल है. न्यूट्रिनोज डिटेक्टर्स आर लोकेटिंग अंडर वाटर, डीप अंडरग्राउंड और इन पोलराइज. प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पर आ चुका है. इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग भी एक्सट्रीमली रेयर होती है. न्यूट्रिनोज कोलाइडिंग विद मैटर अगर हमें पता लगाना है, तो उसके लिए हमें उस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करना होगा. हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर सबमर्ज्ड इन मेडिटेरेनियन सी, उसने यदि ऐसा पता लगाने में मदद की है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल कंडीशंस के अंदर हमारे लिए अचीवमेंट. साइंटिस्ट न्यूट्रिनोज को
इसलिए अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ताकि वो ये जान सके यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था, वो आपस में जुड़े कैसे हुए हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हाईएस्ट एनर्जी processes in the universe. That is what we can say from the prelims examination perspective. India France strategic partnershप, ये अपने आप में अगर हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है न्यूक्लियर एनर्जी. हमारे माइंड में आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच सकते हैं. हमारे माइंड में आता है कि कैसे इंडिया और फ्रांस इंडो पैसिफिक जोन में जुड़े हुए हैं. हमारे माइंड में आता है कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की बात है वो बिना इंडिया फ्रांस के कमिटमेंट के पूरा नहीं हो सकता. हम साथ में ये भी देखते हैं कि जो आईएमईसी है वो इंडिया को एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है यूरोप पहुंचने का. ऑन द टॉप ऑफ इट, इंडिया इंडियन फ्रेंच रिलेशनशिप अपने आप में इस चीज को प्रमोट कर रही है कि कैसे वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्रिएट कर सके. ना सिर्फ राफेल जो एक आइडेंटिफायर फैक्टर है, बल्कि इंडिया और फ्रांस का बहुत डीप कल्चरल कनेक्शन भी है. कीपिंग इन माइंड what developments are taking place in the rest of the world, for example in the Middle East, जहाँ पे Israel and Hamas and rest of the developments are taking place in context of Eastern African coast, in context of what is happening in I would say in context of African continent. इन सभी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए इंडिया फ्रेंच रिलेशनशिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज फ्रेंच ऑल्सो वांट टू हैव देयर फ्यूचर सिक्योर्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यू चेंजेस. रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन वो भी एक डेवलपिंग फैक्टर है, क्योंकि रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन ने जब नेटो ज्वाइन किया तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद से जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है वो और चेंज हो जाती है. रशिया भी क्वाजी क्वाजी अलायंस के तरीके से, चाहे वो सिर्फ चाइना हो, चाहे उसका लिटिल बिट ऑफ वार्मिंग अप टुवर्ड्स पाकिस्तान हो, वो भी एक फैक्टर होता है. तो कमर्शियल एक्सचेंज तो अपनी जगह है, बट इंडिया फ्रेंच मिलिट्री और वन कैन से डिफेंस जो उनकी पार्टनरशिप है दैट इज वेरी डीप, क्योंकि अपने अपने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में दोनों को इस चीज की जरूरत है. वन मोर थिंग व्हाट वी कैन से दैट एनर्जी, न्यू टेक्नोलॉजीज that as we discussed with respect to nuclear power, क्योंकि फ्रांस इज अ पायनियर इन न्यूक्लियर एनर्जी जहां पर 70% of electricity is derived from nuclear power as said. So it is in this context we have to see that how India and French relationship can really culminate and propel India and France further. We have discussed this issue previously also, that how there is uh, economic there is an economic progress if it is linked with green energy, if it is linked with the modern technologies. हम खुद जीरो कार्बन की तरफ बढ़ना चाहते हैं. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या कंडीशंस क्रिएट किए जाएं जिनसे उनका अट्रैक्शन बढ़े और उनकी यील्ड भी बढ़ जाए. सो दिस इज व्हाट इज अ चैलेंज. चाहे फिर वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे फिर वो एफॉरेस्टेशन हो अंडर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और चाहे फिर स्वच्छ भारत अभियान के कुछ एलिमेंट्स हो, चाहे फिर वो क्लीन यमुना ही क्यों ना हो, सब जगह हमें फंडिंग, सब जगह हमें फाइनेंस कमिटमेंट चाहिए. इसीलिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को कैसे आप उठाएंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है. डू थिंक अबाउट इट एंड यू कैन ऑलवेज राइट बैक इन द कमेंट बॉक्स. With all these debatable and also very, very thought provoking ideas, we finish this discussion with the hope that you revisit it and try to bring more complex, more doubts, and also more uh, clarity in your thinking process with respect to understanding what is happening around us, which can really help us to get more closer to the success in the
UPSC examination. Thank you, and we'll get back surely with more zeal, more clarity, and understanding to help you get success. Thank you very much.